Hello students, welcome to the new lecture of your chemistry. So I know it's been a long time I didn't post any lecture in the Google Classroom. So because we are planning to open the school, right? So I was also waiting for that so that we can directly interact and have the classes like that. And some of my problems also there, but no problem. Yes, we'll start the class now itself. So this is what I started taking your chapter, that is equilibrium. Okay, equilibrium. Why I started taking this chapter equilibrium? Because I thought this is the one of the most important chapter of your physical chemistry, and that is included in your latest syllabus. I know we were discussing about what elements, periodic table and periodicity, right? But if we are going to waste our so much time in that chapter is important as per inorganic point of view. It is important, but not that much. We'll complete it fast. Okay, so we'll now take big chapters which are going to take actually you can say 10 to 14 lectures to complete. So this chapter comes in that particular category. This is what equilibrium. So equilibrium basically it is belongs to that category, that it is a big chapter and that too most important chapter of your chemistry. So we'll understand each and everything in very detail, and we'll try to do numericals also. And trust me, after this chapter will going to end, मतलब जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, you will not at all feel that it is difficult or something is very difficult in this chapter. So we'll like that, we'll continue the class. Now comes what is equilibrium. Okay, so before we are going to start this equilibrium, 3-4 things we have to understand. That whenever we are heard about the word equilibrium basically what we are using in our day-to-day life when we are talking, and when we are talking about ourselves, that time also we are taking into consideration about equilibrium. Just imagine you are lying down on a bed. Okay, आप ही सो रहे हो बिस्तर पे और आपके पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं इधर आओ इधर आओ, एंड यू विल बी फील लाइक अरे मैं इतना स्टेबल से लेटा हुआ था, आई वाज लाइक मैं इतने स्टेबल से लेटी हुई थी एंड दे आर डिस्टर्बिंग मी, राइट? So that stability is what, that is what your equilibrium, right? So basically in normal sense, or when a person, कोई बहुत गरीब है, उसने बहुत मेहनत करके एक स्टेबिलिटी हासिल कर ली, जब वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा तो वो क्या बोलता है कि हाँ नाउ मेरी लाइफ कुछ इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ही ज़्यादा नीचे है ना ही ज़्यादा ऊपर है, राइट? इवन ये तो हमारा लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए. नॉर्मली जब हम सी सॉ खेलते हैं, राइट, एक साइड ऊपर जाता है एक साइड नीचे जाता है, राइट? जब कोई मोटा इंसान एक साइड बैठ जाए और कोई बहुत दुबला पतला इंसान एक साइड बैठे तो क्या होगा? जो पतला इंसान है वो डाउन तरफ से जाएगा और वो पतला इंसान क्या हो जाएगा? पतला इंसान अप की तरफ से जाएगा, मोटा इंसान डाउन की तरफ हो जाएगा, राइट? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है. बट अगर वो डिसाइड करें कि हम इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो वो ट्राई करके इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, राइट? सो ये डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल में भी इक्विलिब्रियम बहुत हमको दिखता है, देखने में मिलता है. सो एवरीथिंग वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एक तरह का स्टेट है ऑफ स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये रह गया हमारा जितना भी डिस्कशन किया हमने, ये सब हमारा डिस्कशन था इन जनरल टर्म्स. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है? सो सबसे पहले इक्विलिब्रियम बेसिकली जो मतलब होता है इक्विलिब्रियम का, वो होता है अ स्टेट ऑफ रेस्ट और बैलेंस. या तो एक रेस्ट है, ठीक है, एक स्टेट है किसका, रेस्ट का एक स्टेट है, या फिर एक बैलेंस का स्टेट है. दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम इन जनरल सेंस. नाउ विल टेक एन एग्जांपल. ओके, नाउ विल टेक एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड. देयर आर कैटेगरीज ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, देयर इज कैटेगरीज ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ विल अंडरस्टैंड. जस्ट इमेजिन मैंने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है, मैंने ये बॉक्स ले लिया. अब क्या किया मैंने, इस अभी जैसे इस बॉक्स में तो ये फिगर बना हुआ है आपका, यहाँ से भी फोर्स लग रही है. जस्ट इमेजिन यहाँ से कोई फोर्स लग नहीं रही है, सिर्फ यहाँ से एक फोर्स लग रही है. व्हाट क्या होगा इस बॉक्स के साथ? ये बॉक्स आपका इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, राइट? आपका ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, राइट? अब मान लो इस डायरेक्शन में कोई आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, इस डायरेक्शन से आप इसको फोर्स लगा रहे हो, क्या होगा? ये बॉक्स आपका इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. नाउ जस्ट इमेजिन सेम फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और इस डायरेक्शन में भी लगा रहे हो, ठीक है, सेम फोर्स लगा रहे हो. और ये दोनों फोर्स जब आप सेम इक्वल स्ट्रेंथ के साथ इक्वल फोर्स लगा रहे हो, तो आप बताओ क्या ये बॉक्स मूव करेगा अपनी जगह से? नहीं, बॉक्स बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा. क्यों बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं करेगा? क्योंकि ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में एंड ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये जो नेट फोर्स क्या कर देगी? जीरो कर देगी. क्या कर देगी? जीरो कर देगी, ठीक है? और हम ये बोलेंगे कि बॉक्स तो मूव किया ही नहीं, और बॉक्स क्या हो गया? बॉक्स विल बी एट रेस्ट. मतलब ये जो बॉक्स है वो अपने रेस्ट में, कोई मोशन में नहीं, मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है, आराम से बैठा हुआ रेस्ट कर रहा है, ठीक है, बॉक्स.
सो ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हम दोनों टाइप से सेम टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, राइट, बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब रुका हुआ इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ओके। सो दिस इज व्हाट अ टब, ओके, दिस इज व्हाट अ टब, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके। सो एक तरह का आपका ये टब है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन ये टब आपका पहले नॉर्मल एक टब था, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपका एक यहाँ पर आपको लेती हूँ और समझाती हूँ। अब मान लो ये आपका टब था, ठीक है, ये टब है और यहाँ पर टैप रखा है, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, आपने एक बकेट रख दिया है। अब क्या पानी आ रहा है, ये टब है और पानी यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये वाटर लेवल फिल होने लगेगा ना, एक टाइम के बाद वाटर लेवल इसमें भरने लगेगा। वाटर लेवल जब इसमें फिल होने लगेगा, उसी टाइम पे आप क्या करो, यहाँ पर एक इक्वल साइज का होल बना दो, मतलब इतना ऐसा होल बनाओ कि जितना पानी इसमें से आ रहा है उतना पानी इसमें से निकलता भी जाए, ठीक है। तो जितना पानी आ रहा है इसमें से निकलता भी जा रहा है, तो बताओ क्या ये बकेट पूरा भर जाएगा, नहीं। अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आ रहा है तो इसका लेवल बढ़ रहा होगा, यहाँ से सेम अमाउंट पानी निकल रहा है, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है, पानी घुस रहा है बकेट के अंदर, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये हो रहा है कि पानी इसमें से वापस निकल रहा है, राइट, वापस इसमें से पानी निकल रहा है। देखो, फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होता है, बैकवर्ड होता है, राइट, फॉरवर्ड का अपोजिट बैकवर्ड होता है। पानी बकेट में फिल हो रहा है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, पानी बकेट से निकल रहा है, राइट। तो इस तरह से ये हम बोल सकते हैं, इस वजह से क्या होगा, पानी का लेवल तो सेम ही रहेगा, राइट। वही मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करके बताया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बकेट है और यहाँ पर आपने होल बना दिया, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आ रहा है, ठीक है, टैप से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आता जा रहा है, और अब पानी तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है और इसमें से आपका पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल भी रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, आपका वाटर लेवल विल बी सेम, क्या है, आपका वाटर लेवल जो है वो आपका सेम ही रह रहा है, क्या रह रहा है, सेम रह रहा है वाटर लेवल, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो आपका फॉरवर्ड जो प्रोसेस है, जैसे फॉरवर्ड जो पानी का प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, पानी बकेट में फिल कर रहा है वो फॉरवर्ड हुआ, पानी निकल रहा है उसका उल्टा तो बैकवर्ड हुआ, तो बैकवर्ड प्रोसेस मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो रहा है, बैकवर्ड प्रोसेस भी हो रहा है। और इस केस में आपका वाटर का लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा वाटर का लेवल, क्योंकि जितना पानी घुस रहा है उतना निकल जा रहा है, तो वाटर का लेवल तो बराबर ही रहेगा, राइट। और ये सिस्टम भी हमारा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वाटर का लेवल तो बराबर ही है, बैलेंस कंडीशन में है। बट ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हम स्टैटिक नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली पानी के अंदर मतलब बकेट के अंदर जा रहा है, पानी बकेट से निकल रहा है। सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, ये जो वाटर लेवल सेम है, मीन्स ये इक्विलिब्रियम में है, बट दिस इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक। ये इक्विलिब्रियम आपका स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि वाटर कंटेनर में घुस रहा है, कंटेनर को रिलीव कर रहा है विद सेम स्पीड, राइट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड प्रोसेस था, और वो किससे, फॉरवर्ड जो रिएक्शन की स्पीड है, मतलब जो रेट है, ठीक है, वो आपका इक्वल है किसके, वो आपका इक्वल है बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड से, एकदम आपका इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के हम जो इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऐसे टाइप इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम ना। सो आई थिंक अब ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है यहाँ पर कि हियर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द बैकवर्ड रिएक्शन आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। यहाँ पर जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपका अकर कर रहा है साइमल्टेनियसली। क्या कर रहा है, वो दोनों आपस में अकर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे ही फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन साथ में हो रहा है। देखो, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो ये बेसिकली एग्जांपल हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम का और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एक तरह का स्पेशल केस है। क्या है वो, आपका स्पेशल केस है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, मतलब एक एग्जाम्पल है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ने वाले हैं अभी, जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपका इक्विलिब्रियम, ये जो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये आपका जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ये दो चीज़ में डिवाइड है। एक तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में जाएंगे। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाली टॉपिक है ये, बट
ठीक है, बट आपके बुक में दोनों को एक साथ में मर्ज करके दे दिया है। तो ठीक है, मैं बोलूँगी केमिकल इक्विलिब्रियम आपका बहुत ईजी है, आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा अच्छा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल नहीं बोलेंगे, इट्स गुड, ठीक है, वो बोल सकते हैं। सो नाउ विल अंडरस्टैंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो केमिकल्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम आ जाता है रिएक्शंस के बीच में, और आयनिक इक्विलिब्रियम जो आयंस के बीच में आता है, वो होता है जनरल सेंस, एक नॉर्मल वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं वो होता है उसका मतलब, ठीक है। नाउ हम ये समझ चुके हैं कि जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो एक एग्जाम्पल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। नाउ हम जब केमिस्ट्री में ब्रॉडली रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली जो रिएक्शंस को कैटेगराइज करते हैं दो टाइप में, एक तो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो अब अगर आप सोचोगे केमिस्ट्री में तो बहुत सारे रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन है, बहुत कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, राइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, सो ये सारी रिएक्शंस हैं, आई एग्री, बट मेनली जो रिएक्शंस को हम क्लासिफाई करते हैं वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं? जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, जो रिएक्शन रिवर्ट बैक नहीं कर सकती उनको हम बोलते हैं, रिवर्स नहीं हो सकती उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और वैसे ही सेम में रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो कि आपकी रिवर्स हो सकती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हमने लिखा है। मैं यहाँ पर आपको बहुत बार बताया कि मैं लिखती इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको इतने एग्जाम में इतने डिटेल में इतने सबको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, बट व्हेन आई एम टीचिंग यू इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। आप इसके एग्जाम्पल्स देख के भी चीज़ें समझ सकते हो, बट आई थॉट आई विल राइट डाउन, ओके, सो दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट, बिकॉज ये हमारा कोई लाइव इंटरेक्शन तो नहीं है, हमारा ये एक तरह का नॉर्मल 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ एक्टिव काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ काइंड ऑफ अ पैसिव काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। आप लोगों से मैं रिकॉर्ड करके वीडियो भेजती हूँ आपको, देन एंड देयर यू कैन नॉट आस्क मी, सो आई विल मेक श्योर दैट आई विल क्लियरिफाई एवरीथिंग, राइट। सो नाउ कम्स द इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन में? द रिएक्शन विच कैन नॉट बी विच मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जो रिएक्शन एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है वो वापस मुड़ नहीं सकता, और यू कैन से विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। नाउ अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये है आपका ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होकर अब क्या बन रहा है? आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट, और ये आपका रिएक्शन फॉरवर्ड है, ठीक है। सो आपको पता होगा जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपका पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट ही आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? आपके रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो रिएक्टेंट के पास तो कुछ वैल्यू होगी, कुछ अमाउंट होगा, कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो इनिशियली जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है वो ज़्यादा होता है, वो आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। धीरे धीरे जैसे वो प्रोडक्ट बनाने लगते हैं समय के साथ साथ, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बात नहीं लिखी है, यही लिखा हुआ है एज टाइम पासेज अवे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करने लगेगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? आपका इंक्रीज करने लगेगा विद टाइम के साथ, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो एग्जाम्पल हमारे पास है सबसे पहला एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस जो रिएक्शन है हमारे पास। सो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है हमारा? सबसे पहले अब आप हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं बोलूँगी इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि रिवर्स नहीं हो सकता ना। इसका पहला एग्जाम्पल जो केस इसके अंदर आता है वो आपका आता है एसिड रिएक्शन। क्या आता है आपका? एसिड रिएक्शन। अब आप बोलोगे एसिड रिएक्शन कैसे इस कैटेगरी में आता है? क्योंकि जब आपका एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। क्या बनाते हैं? आपको पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो आज जान लो। अगर आप बचपन का कॉन्सेप्ट 10th 9th का कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो ईमान जान लो। एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। नाउ जस्ट इमेजिन वी हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? वाटर एंड सॉल्ट एंड वाटर, दे विल कंबाइन टुगेदर फॉर्म। अब ये जो रिएक्शन है मैं बोल रही हूँ, ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो सकता है, बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब ये सॉल्ट एंड वाटर आपस में कंबाइन करके फिर से एसिड बेस नहीं बना सकते, क्योंकि आपको एक चीज पता होगी,
एसिड के पास एक टेंडेंसी होती है, वो अपना H+ क्या करते हैं, जो आयन होता है उसको लूज करते हैं, और बेसिस के पास टेंडेंसी होती है वो अपना OH- लूज करते हैं। और जब ये H+ OH- आयन लूज करके ये वाटर देता है, तो कोई भी एसिड वंस ये सॉल्ट और वाटर बन गया, अगेन ये साल्ट और वाटर एक दूसरे में कंबाइन नहीं करेगा और एसिड एंड बेस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अंडरस्टूड है, क्योंकि उनके नेचर के अगेंस्ट कोई काम नहीं करता। अब आपका ही कोई नेचर है, आप अपने नेचर के अगेंस्ट तो काम नहीं करोगे ना। बहुत कम ऐसा केस होता है जब कोई इंसान अपने नेचर के अगेंस्ट काम करता है। तो एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का तो हाईली नेचर होता है उनका, तो उस पर डिपेंड करता है, तो वो अपने नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करते। तो मैंने ये आपको समझा तो दिया, और साथ में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, ताकि आपके रेफरेंस के लिए कि NaCl और H2O जो हैं आपके विल नॉट कंबाइन टू फॉर्म HCl एंड NaOH। ठीक है, अब देखो ये NaCl H2, ये NaCl एंड H2 है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके कभी भी HCl मतलब एसिड और बेस NaOH नहीं बनाएंगे, बिकॉज एसिड हैज द टेंडेंसी टू लूज H+ आयन, क्योंकि एसिड के पास जो टेंडेंसी होती है H+ आयन लूज करने की टेंडेंसी होती है, एंड बेस के पास हैज द टेंडेंसी टू लूज OH- आयन, और बेस की जो टेंडेंसी होती है वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो OH- आयन को लूज करें। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हैंस दिस रिएक्शन इज नॉट एट ऑल रिवर्सिबल, और हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रिएक्शन होगा ये नॉट एट ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन का। नाउ सेकंड जो हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आता है वो आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या आता है आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ विल अंडरस्टैंड। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेट, तो आप बोलोगे प्रेसिपिटेट का मतलब वो होता है कि कोई भी इनसॉल्युबल सी चीज जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती है, जो कि रिएक्शन में बच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बन गया। राइट, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब आप खुद सोचो, कोई रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो क्या उस रिएक्शन को वापस पहले जैसा लाना पॉसिबल होगा, नहीं हो पाएगा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लें, आपके पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, अब उसमें आपने NaCl डाल दिया। ठीक है, NaCl सॉल्ट डाल दिया, ये कंबाइन करके AgCl बना दिया एंड NaNO3, मतलब AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये एक तरह का वाइट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, जब आपने सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया तो ये आपस में AgCl बना, वो प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब नीचे बैठ गया, वो कोगुलेट करके नीचे बैठ चुका है। और क्या वो बैठने के बाद फिर से वो जो सोडियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके फिर से AgNO3 NaCl बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ऑब्वियसली नहीं। अब जितना AgNO3 बन गया, ऊपर से भी अगर आप इसमें प्रेसिपिटेट बन चुका है, इसमें आप ऊपर से भी NaNO3 डालोगे तो भी क्या होगा, तो भी ये प्रेसिपिटेट बनता ही जाएगा। तो जब भी कोई प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब कोई इनसॉल्युबल सी चीज आ गई रिएक्शन में, तो उसका तो बैकवर्ड पॉसिबल ही नहीं है। राइट, सो इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी बैकवर्ड रिएक्शन आपका क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है आपका। Now comes the third reaction, that is what our combustion reaction. Now if I say the example of combustion reaction, तो आप सोचोगे combustion reaction भी क्या irreversible reaction होता है। Now combustion reaction समझने से पहले, ये तो हमने बचपन में बहुत बार पढ़ रखा है, राइट। सो combustion reaction समझने से पहले सबसे पहले एक चीज समझनी है कि combustion का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो combustion का मतलब होता है heating in presence of oxygen, और यू कैन से बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही होता है कंबशन का मतलब। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कार्बन को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करो, क्या मिलेगा आपको, अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने लगोगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। अब आप खुद सोचो, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी एंड हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्शन में, क्या आप फिर से ये जो इवॉल्व हुई वाली हीट को कलेक्ट करके इसके साथ रिएक्ट करके फिर से कार्बन और ऑक्सीजन बना सकते हो, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में जब हीट हो रहे थे, बर्न हो रहे थे, तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और हीट जो कि सिस्टम से निकल चुकी है बाहर, आप उसको वापस लेके कैसे बना सकते हो, ये तो नॉट एट ऑल पॉसिबल। राइट, ये तो रिवर्सिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि हीट निकल चुकी है सिस्टम से। हीट यू कैन नॉट गेन दैट हीट। आप हीट भले ही डाल सकते हो, फिर से इसको हीट कर सकते हो, आप बोल सकते हो इसको फिर से हीट कर सकते हो, बट जो हीट निकली है उसमें से वही हीट को दोबारा इसके साथ कंबाइन कर सकते हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। राइट, सो दैट्स व्हाट यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, इट इज नॉट पॉसिबल दैट CO2 टेक दिस हीट एंड फॉर्म कार्बन एंड ऑक्सीजन वंस अगेन। कार्बन एंड ऑक्सीजन वंस अगेन बनाना CO2 के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग इक्विलिब्रियम इन दीज रिएक्शंस, ठीक है। इस रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम मिलने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, गेटिंग नो चांस, ओके, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग इक्विलिब्रियम इन दिस रिएक्शन बिकॉज देयर इज ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो रहा है, और जब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा तो हमको इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया क्या है कोई भी रिएक्शन का, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। रेट मतलब स्पीड ऑफ, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन होने से ही इक्विलिब्रियम मिलेगा आपको, राइट। सो देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग इक्विलिब्रियम इन दीज ऑल रिएक्शंस, ठीक है, इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम मिलने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो, नॉट एट ऑल, देयर इज ओनली वन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ कम्स दी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ये हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रिवर्सिबल तो आपको पता चल गया, दो टाइप के रिएक्शंस के बारे में जो हमको पढ़ना था केमिस्ट्री में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में तो पता चल गया है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। नाउ आपका इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं है, हम पहले देखते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो होता क्या है। सो द रिएक्शन विच कैन बी रिवर्स्ड, वो रिएक्शन जो कि रिवर्स हो सकता है, ठीक है, वापस से रिवर्स हो सकता है, वो उसको हम बोलते हैं क्या, विच कैन बी रिवर्स्ड, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो एक रिएक्शन है जो कि वापस मुड़ सकता है कभी भी टाइम पे, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, और वहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A प्लस B आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं C प्लस D, ठीक है। अब मान लो रिएक्टेंट है ये, और ये आपका प्रोडक्ट है। इनिशियली आपका कंसंट्रेशन, मैंने बताया था रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट तो आपका जीरो होगा कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं है, टाइम रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं है, और रिएक्शन जब स्टार्ट भी होगा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मान लो इनिशियली कंसंट्रेशन जो है आपका रिएक्टेंट का AB का 2 मोल था, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, एंड ये कंबाइन करके आपका CD बना रहे हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन CD का 0 था, ठीक है। अब क्या हुआ, AB आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, ये लोग आपस में फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे और CD बनाएंगे, ठीक है, CD। जब एक लेवल का C और D बन जाएगा, ठीक है, एक अमाउंट का CD बन जाएगा, मतलब मान लो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम T, जब CD बन जाएगा, लेट इट सपोज 1 मोल ऑफ CD बन गया, जब ये 1 मोल ऑफ CD बन गया तो ये दोनों 1 मोल ऑफ CD आपस में कंबाइन करके बैकवर्ड रिएक्शन करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, और ये AB बनाने लगेंगे, ठीक है। और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होता रहेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता रहेगा, एक टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपका एक टाइम के बाद कम होता रहेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आपका बढ़ता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, और वही आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन में बैकवर्ड, इसलिए हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैरो और ये कैरो। जब भी ऐसा कुछ सिंबल दिया हो तो आप समझ जाना ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो मैंने आपको समझाया वही मैंने लिखा भी एक्सप्लेनेशन में, आप चाहे तो जब नोट्स लिखते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको याद रहेगा, ठीक है। आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स, नो प्रॉब्लम, पर जब आप नोट्स लिखेंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको याद रहेगा, आपको सिर्फ इक्वेशन लिखने से भी याद रह रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उतना सब लिखने की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या होगा, स्पीड, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, मतलब जिस स्पीड से A और B कंबाइन करके C और D बना रहे थे, ठीक है, A और B कंबाइन करके C और D बना रहे थे, जैसे ये A और B कंबाइन करके C और D बना रहे थे, ठीक है, वो स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, डिक्रीज होने लगेगी, बिकॉज क्यों, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में उनके पास कंसंट्रेशन है, वो आपस में कंबाइन करके ही तो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, एज मॉलिक्यूल विल रिमेन लेस, और मॉलिक्यूल जैसे उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज जाएगी तो उनके पास मॉलिक्यूल्स भी कम रहेंगे, मॉलिक्यूल्स जब कम रहेंगे तो वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन कम होने लगी, मॉलिक्यूल्स कम होने लगेंगे, धीरे धीरे वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता रहेगा। इन द सेम वे विद टाइम क्या होगा, आपका बैकवर्ड जो रिएक्शन है
वो रेट विल इंक्रीज, वो क्या करने लगेगा, वो आपका इंक्रीज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट आपके कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, आफ्टर सम टाइम एक टाइम ऐसा आएगा, अ सिचुएशन विल कम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब आपका इक्वल हो जाएगा किससे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, और तब आप बोलोगी कि आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो मैंने जो आपको पहले बताया था एक्सप्लेनेशन, वही सेम एक्सप्लेनेशन, वही चीजें लैंग्वेज में लिखी हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो वही तो स्टेट क्या होगा, ए बी पहले कंबाइन करेंगे, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, धीरे धीरे इनका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, और वंस इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा ये बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा और रिएक्शन भी सेम स्पीड से होने लगेगा, वही हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है यही आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आप बोलोगे जो इक्विलिब्रियम केमिकल जो इक्विलिब्रियम बात कर रहे थे हम, वो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर चुके हैं। सो नाउ अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये लाइक हमारा हेवर्स प्रोसेस एंड ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इफ विल कंटिन्यू और स्ट्रेच दिस क्लास टू मच तो ये अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।